Hello students, once again welcome to this lecture of topic vector, and in this lecture we are going to solve the important problems on vector product, that is the cross product. In the last lecture we have discussed what is cross product, that is vector product, and its important properties, and now in this lecture we will use those properties to solve these important problems. So see, the first problem of this lecture is on the board, and it is given that in the first problem, see on the board, a dot b, a vector dot b vector equal to root 3, it is given and a cross b vector is also given 2i plus j plus 2k, and we have to find the vector angle a and angle b. So here a vector dot b vector is given to be root 3 and a vector cross b vector, this cross product of the vector a and b is given as 2i plus 2j plus 2k, and we have to find the angle between vector a and vector b. So first I will find the magnitude of this vector a cross b. So how to find the magnitude of a vector? So this is square root of x square plus y square plus z square, so it is 4 plus 1 plus 4. So magnitude of this vector a cross b is 3. Okay, and this is the cross product, this is the dot product, this is the magnitude of cross product. Now we have one important relation between dot product and cross product, see in the properties of cross product, and that relation is known as Lagrange's identity. So what was the Lagrange's identity? That Lagrange's identity was mod of a cross b whole square equal to a square b square minus a dot b whole square. This relation between cross product and dot product is called as Lagrange's identity. So in this we know the magnitude of vector a cross b 3, so its square is 9 equal to a square b square minus a dot b is given as root 3, so its square is 3. So from this equation we have a square b square equal to 12, and product of magnitude of vector a and b, ab equal to root of 12, that is 2 root 3. Okay, now we have to find the vector angle a and b. So we have a dot b equal to square root of 3. So a dot b is ab cos of theta, which is equal to square root of 3, and here a into b is 2 root 3 into cos of theta equal to square root of 3. So this root 3 will get cancelled, and cos of theta equal to 1 by 2. So therefore theta will be equal to 60 degree, and answer to this question C in the option is C is correct. So this was the problem number 1 of vector product, that is the cross product. So you first see all the properties carefully, then you can solve the problems on cross product. So all these products of vectors are very interesting. If you practice the problems on all the products, that is the dot product, cross product, इसके बाद में हम देखने वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. So all these products are very interesting and the problems are also very interesting. Now see the question number 2. Question number 2 on the board is a vector is given to me 2i plus j minus 3k, vector b is given I minus 2j plus k, a vector of magnitude 5 perpendicular to both a vector and b vector. So in the formula we have seen unit vector perpendicular to a vector and b vector is given by a cross b upon mod of a cross b. तो यूनिट वेक्टर मिल जाने के बाद
हमें उस यूनिट वेक्टर को जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें चाहिए उतने मैग्नीट्यूड से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल यूज दैट फार्मूला. सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन वेक्टर ए एज 2i plus j minus 3k and vector b is given as I minus 2j plus k. I have to find, first I have to find unit vector perpendicular to a and b. So unit vector perpendicular to a and b is given by a cross b upon mod of a cross b. There are two unit vectors perpendicular to the plane of a and b. One is obtained by plus sign and other is obtained by minus sign. So to find the unit vector, first it is important to find the cross product of these two vectors. So how to find the cross product of two vectors in terms of components, and that is given by this determinant. See the properties. In the first row we write I vector, j vector, k vector, which are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. In the second row we write the components of the vector a, and in the third row we write the components of the vector b. So here components of the vector a are 2, 1, minus 3, and components of the vector b are here 1, minus 2, 1. Now for this you have to solve this determinant, and after solving this determinant you will get the cross product, that is the a cross b. So this I into a determinant होगा 1 minus 6 minus 5i, this will be 2 plus 3 5 minus 1, तो ये होगा minus 5j, and minus 4 minus 1 minus 5k. So this is the vector a cross b. Now we will find the magnitude of this vector. So magnitude of this vector a cross b is square root of x square plus y square plus z square. So it is 25 plus 25 plus 25. So it is 3 times 25, which is equal to 5 root 3. Okay. Now unit vector perpendicular to, formula ऐसा है, unit vector perpendicular to a and b is given by plus minus a cross b upon mod of a cross b. So we will substitute the values. plus minus a cross b vector है minus 5i minus 5j minus 5k by magnitude of this vector a cross b is 5 root 3. So this 5 will get cancelled, and taking minus 5 common, 5 will get cancelled. So it is plus minus I vector plus j vector plus k vector by root 3. Now I have to find a vector whose magnitude is 5. So again we have to multiply this vector by 5. So unit vector हमें मिल गया है, लेकिन हमारा magnitude हमें कितना चाहिए? Magnitude is equal to 5. So we will multiply by 5 to this unit vector. So by multiplying by 5 to this unit vector, I will get plus minus 5 by root 3 into this vector I plus j plus k. So plus minus 5 by root 3 into I plus j plus k. This is the answer in the option A. So option first is correct, and in this problem this formula we have used. Unit vector perpendicular to a and b is given by plus minus a cross b upon mod of a cross b. अब जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतने मैग्नीट्यूड से आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए. सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड वेक्टर. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, एंड नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. सो सी ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3. So in third question, what we have given and what we have to find. In question number 3, we have given magnitude of vector u2, magnitude of vector v5 and magnitude of vector u cross v8, and I have to find this dot product u dot v. तो इसके लिए भी हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी ही यूज़ कर सकते हैं. क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
u क्रॉस v दिया है और डॉट प्रोडक्ट पूछा है. सो दिस can be obtained by using the Lagrange's identity. So here question number 3, in which I have given mod of u equal to 2, mod of v equal to 5 and mod of u cross v equal to 8. So I will use Lagrange's identity to find u dot v. तो Lagrange's identity का फॉर्मूला क्या है? What is the relation between क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट? मॉड ऑफ u क्रॉस v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u डॉट v स्क्वायर. इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है. आंसर इज रेडी. प्रॉब्लम इज वेरी शॉर्ट. सो मॉड ऑफ u क्रॉस v का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? 64 u स्क्वायर यानी u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 माइनस u डॉट वी स्क्वायर. तो इस तरह से u डॉट वी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 100 माइनस 64 36 एंड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट u डॉट v इज 6. सो 6 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्लस माइनस 6. ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर इज इन द लास्ट ऑप्शन डी. Very short and sweet problem on Lagrange's identity. See next problem number 4. Problem number 4, and in this problem I have given the expression 2 times a cross b cross 2 times a minus b cross 2 times a plus b. See on the board, question is here. 2 times a minus b cross 2 times a plus b कौन सा वेक्टर होगा? तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने की है. क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये तो हमें पहले से पता है. ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी को हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं. सो यूजिंग ऑल दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर 2 टाइम्स ए माइनस बी क्रॉस 2 टाइम्स ए प्लस बी. वेरी वेरी सिंपल. तो ये 2 और ये 2 तो स्केलर हैं. तो वेक्टर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो पहले उनका प्रोडक्ट ले लेना चाहिए. तो इनमें इसका कोई रिलेशन नहीं है क्रॉस से डॉट से. सो 2 into 2 becomes 4 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी. वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, स्केलर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा. सो दिस विल बी 4 इंटू, अब देखिए a क्रॉस a प्लस बी होगा माइनस b क्रॉस a प्लस बी होगा. वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज हियर. सो हियर a क्रॉस a, ध्यान से देखिए a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस बी क्रॉस बी. ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा है इक्वल वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. सेम वेक्टर से सेम वेक्टर का एक ही वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 वेक्टर होता है. तो ये वेक्टर a क्रॉस a एंड b क्रॉस b विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर. सो इट इज़ 4 टाइम्स. नाउ दिस इज a क्रॉस b. अब इस माइनस बी क्रॉस ए को मैं प्लस माइनस बी क्रॉस ए को मैं प्लस ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ. ओके, सी द प्रॉपर्टीज. सो इट इज़ 4 टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी. दिस इज 2 टाइम्स ए क्रॉस बी एंड दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ए क्रॉस बी. सो 8 टाइम्स ए क्रॉस बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर इन द ऑप्शन बी. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4. Now see the question number 5. Students, first I am taking the problems from your textbook and then I will take the problems from another book of CET, MST CET. तो इसमें आपका टेक्स्ट बुक के भी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे and there are the chances to the कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. सी द क्वेश्चन नंबर 5. इसमें पूछा है हमें
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, दो वेक्टर दिए हैं एंड दीज टू वेक्टर्स आर द रिप्रेजेंट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के मैंने दो फॉर्मूले बोले थे, सीधा लेक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर एडजेसेंट साइड ए और बी है तो एरिया होता है पैरेललोग्राम का मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए और बी डायगोनल्स होते हैं या सी और डी डायगोनल्स होते हैं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय 1/2 मॉड ऑफ सी क्रॉस डी। तो 1/2 लेते हैं जब डायगोनल्स दिया होता है, अगर साइड्स एडजेसेंट साइड्स है तो 1/2 लेने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ ओनली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे डायगोनल्स दिए हैं, सी द क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो हियर ए वेक्टर इज गिवन एज 3i minus j minus 2k and the vector b is given as minus I plus 3j minus 3k, and I have to find the area of parallelogram. So for that, first I have to find the cross product of these two vectors. So as usual, first row is ijk, components of vector a are 3 minus 1 minus 2, components of vector b are minus 1 3 and minus 3. So by solving this determinant you will get the cross product of vector a and vector b. So it is 3 plus 6 9i minus 9 minus 2 minus 11, सो ये बन जाएगा प्लस 11j। सो 9 minus 1 plus 8 की। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट यू विल गेट दिस वेक्टर एंड एरिया। फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इट इज़ 81 प्लस 121 प्लस 64। So this will be equal to square root of 266, and the formula for area of parallelogram is 1/2 into mod of a cross b. So 1/2 into mod of a cross b is square root of 266, and this is in the option, this is in the option last D. Answer is correct. So here we have used the area of parallelogram which is given by 1/2 mod of a cross b if a and b represent the diagonals of the parallelogram. अगर साइड्स दिए होते तो 1/2 लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर साइड्स है तो फिर एरिया होता स्क्वायर रूट ऑफ 266. Okay students, so this was the problem number 5. very easy questions in this lecture. नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे। आगे के 10 प्रॉब्लम में 20 या 25 प्रॉब्लम में आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे और आप भी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे दिया है मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी इज लेस देन 0। तो मुझे फाइंड आउट करने का है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, सो द गिवन कंडीशन इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये सभी को पता है मॉड ऑफ ए डॉट बी पॉजिटिव दिया है यहाँ पे ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर विच इज़ गिवन बाय ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सीधा इसके पहले का लेक्चर देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज व्हाट, ए बी साइन थीटा। सो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड साइन को निकाल देते हैं प्लस माइनस ए बी साइन थीटा। तो ए बी कैंसल, तो ये बनेगा टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, अब टेन थीटा की वैल्यू प्लस लेने की या माइनस लेने की, उसके लिए हमें कंडीशन दिया है ए डॉट बी इज लेस देन 0, ए डॉट बी लेस देन 0। तो ए डॉट बी कब निगेटिव होता है, तो इसके लिए सी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर
ए क्रॉस बी निगेटिव है, ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। अगर ए कॉस थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा निगेटिव होगा। इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 then cos theta is obtuse and AB cos theta is negative. In this case A dot B is negative. If theta is less than 90 then A dot B कैसा होगा? Positive. Okay, so in this case cos theta is negative and in this case cos theta is positive. So here A dot B is given to be negative, it means theta is greater than 90, so we have take tan theta equal to -1 and therefore theta is equal to pi minus pi by 4, this is equal to 3 pi by 4. अगर tan theta 1 होता है तो pi by 4, tan theta -1 होता है तो pi minus pi by 4, 3 pi by 4 and tan theta is taken as negative because theta is greater than 90 degree and less than 180, एंगल है less than 180 होगा, so that is surely in the second quadrant and second quadrant tan कैसा होता है? Negative होता है, so the angle is 3 pi by 4 which is in the option C. So this was the question number 6 and now see the next question number 7. See the next question number 7 of this lecture on the board. तो इसके लिए आपको बाकी के कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उसी वो फार्मूले भी आपको किसी प्रॉब्लम में यूज़ करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी पॉपुलर. This is also one of the standard result of cross product. If A is any vector then mod of A cross I square plus mod of A cross J square plus mod of A cross K square क्या होगा? So A बार इज एनी वेक्टर, तो हम A वेक्टर को कंसिडर करेंगे xi प्लस yj प्लस z की. जब भी कोई प्रॉब्लम में देता है R इज एनी वेक्टर या A इज एनी वेक्टर, तो हम इसी तरह से वेक्टर कंसिडर करते हैं और प्रॉब्लम में दिए हुए कंडीशन से हम इसका इक्वेशन बना के अननोन फाइंड आउट करते हैं x y z. So let A vector is this and first I will find the cross product A cross I. तो इसमें 3 क्रॉस प्रोडक्ट है, A क्रॉस I, A क्रॉस J, A क्रॉस K. तो एक ही क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट से हम बाकी के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं. फर्स्ट वी विल सी व्हाट विल बी द मॉड ऑफ A क्रॉस I. तो A क्रॉस I वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है. एज यूजुअल फर्स्ट रो इज IJ केस, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A इन सेकेंड रो x y z, कंपोनेंट्स ऑफ I वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं 1 0 0, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर. J वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं 0 1 0 एंड Z वेक्टर के कंपोनेंट्स दैट इज K वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं 0 0 1. सो इट I वेक्टर हैज़ कंपोनेंट्स 1 0 0. तो A वेक्टर क्या होगा देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं. सो डिलीट दिस कॉलम दिस रो, तो ये वेक्टर बनेगा Z J माइनस y की एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ z square plus y square, that is y square plus z square and the इसका स्क्वायर मॉड ऑफ A क्रॉस I का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी द मॉड ऑफ A क्रॉस I स्क्वायर, दैट इज़ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो इसी तरह से मॉड ऑफ A क्रॉस J का स्क्वायर क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ A क्रॉस I का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. I है तो x की टर्म नहीं है, तो J है तो y की टर्म नहीं होगी, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एंड सिमिलरली मॉड ऑफ A क्रॉस K का स्क्वायर, K है तो Z की टर्म नहीं होगी, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हमें दिस प्लस दिस पूछा है, तो हमें इसकी सम मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, z square plus z square 2z square. So taking 2 common, it will be 2x square plus 2y square plus 2z square and this is the sum of squares of this vector. So this equal to 2 into, अब इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं. So here magnitude of this vector A, that is mod of A is, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ से ए स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर.
So this x square plus y square plus z square can be written as a square, and this is the answer to this question, and this is in the option B. So this was the question number 7. Very easy question, and this question is as a standard result of cross product, that is the vector product. Now see the question number 8 on the board. Question number 8, and in this question what we have given and what we have to find. See the question number 8. In this question I have given an vector equation. If a cross I plus 2a vector minus 5j vector is a 0 vector, then I have to find the vector A. Okay, so this equation is given to me. See the question number 8. Given equation is a cross I प्लस 5a वेक्टर माइनस 5j वेक्टर, तो मैं इसको इक्वल टू माइनस 5j वेक्टर इस तरह से लिखता हूँ. माइनस 5j वेक्टर इक्वल टू 0j वेक्टर दिया है, तो इसको 5j की टर्म मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ. तो यहाँ पे भी मुझे a वेक्टर पूछा है. ओके, तो मैं a वेक्टर कंसिडर करता हूँ xi प्लस yj प्लस zk. अगेन आई विल फाइंड दिस वेक्टर a क्रॉस I. इसके पहले प्रॉब्लम में भी हमने यही फाइंड आउट किया था, सो वी कैन यूज़ दैट रिजल्ट डायरेक्टली, दैट इज़ zj माइनस वाई के. अब भी सॉल्व किया था, फिर से देखिए. सो फर्स्ट रो इज़ ijk, सेकंड रो इज़ xyz, थर्ड रो इज़ 1 0 0, एंड दिस वेक्टर इज़ xyz. सो दिस वेक्टर इज़ zj माइनस yk. सो दिस इज ए वेक्टर, ए क्रॉस आई वेक्टर हमें मिल गया है. सो लेट दिस इज द इक्वेशन 1. सो हियर इज नॉट 5, हियर इज 2. राइट द क्वेश्चन प्रॉपरली. अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्रॉस आई वेक्टर लिख देता हूँ मैं zj माइनस वाई के प्लस अब 2 इंटू ए वेक्टर. ए वेक्टर है, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का है, तो ये वेक्टर मिलेगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk इक्वल टू 5j वेक्टर. तो इस वेक्टर को भी मैं ijk के फॉर्म में लिखता हूँ. तो i की टर्म देखिए, i वेक्टर की एक ही टर्म है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा 2xi वेक्टर, 2xi वेक्टर, दिस वेक्टर. अब j वेक्टर की टर्म्स देखिए, दिस एंड दिस, तो ये सेकंड टर्म बनेगी मेरी 2y प्लस j वेक्टर प्लस अब k की टर्म देखिए, ये j की टर्म्स हो गई हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म. अब बाकी बचे ये दो टर्म्स k वेक्टर की, तो इसको लिख सकता हूँ 2z माइनस वाई, 2z माइनस वाई के वेक्टर इक्वल टू 5j वेक्टर. अब कंपोनेंट्स इक्वेट करेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर. दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो कोएफिशिएंट ऑफ ijk आर आल्सो इक्वल, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ijk आर इक्वल. तो यहाँ पे i वेक्टर नहीं है, तो 2x इक्वल टू 0 होगा. तो 2x इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी. अब ये 5 है, यहाँ j का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ j का कोएफिशिएंट a है, तो 2y प्लस z की वैल्यू मुझे मिलेगी 5. एंड यहाँ पे k की टर्म नहीं है, तो 2z माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2z होगा. अब इस y इक्वल टू 2z को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सो 2 इंटू 2z 4z प्लस z कितना हो जाएगा 5z इक्वल टू 5. देखिए फिर से y इक्वल टू 2z इंटू 2 4z प्लस z 5z इक्वल टू 5. तो इस तरह से मुझे z की वैल्यू कितनी मिल गई 1. सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस. अब z इक्वल टू 1 है, तो मेरा y कितना होगा. सो y विल बी इक्वल टू z इक्वल टू 1, तो y कितना होगा 2. तो इस वेक्टर में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. a वेक्टर इज़ xi, तो x मेरा 0 है, 0i प्लस yj, तो y कितना है मेरा y कितना है 2, तो ये बनेगा 2j, और
प्लस जेड के, तो जेड कितना है 1, तो ये 2j प्लस के, 2j प्लस के इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 2j plus k is the answer to this question, and this is in the 2j plus k, this is the option second, this is in the option second, 2j plus k, z की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, once again we will check, 2y plus z is equal to 5, 2z minus y equal to 0, तो y equal to 2z, y equal to 2z, z equal to 1, y equal to 2, y equal to 2, z equal to 1, 2j plus k, तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, y equal z y equal to 2, I think this answer is correct, 2j plus k. In 1 minute we will again check. तो x इक्वल टू 0 है, 2z माइनस वाई, zj माइनस वाई के, 2y प्लस z, j है तो इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2z, 2 4z, 5z इक्वल टू 5, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2, सो इट इज़ 2j प्लस के. ओके, सो दिस आंसर इज करेक्ट. ये कौन से ऑप्शन में हम चेक करेंगे. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीईटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं. इसके लिए आपको बेसिक क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी. क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इजीली आपको निकालते आनी चाहिए. सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एंड इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन 4 वेक्टर्स ए बी सी डी. These are 4 distinct vectors such that a cross b equal to c cross d and a cross c equal to b cross d. तो a माइनस डी वेक्टर किस वेक्टर को पैरेलल होगा. ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. मेरा पहला इक्वेशन है a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d एंड माय सेकंड इक्वेशन इज a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d. तो मुझे पूछा गया है a क्रॉस d वेक्टर किस वेक्टर को पैरेलल होगा. तो मुझे a माइनस डी वेक्टर कैसे तैयार हो सकता है. हाउ आई कैन फाइंड द वेक्टर a माइनस डी. सो लेट दिस इज द इक्वेशन 1, लेट दिस इज द इक्वेशन 2. तो मुझे यहाँ a माइनस डी वेक्टर तैयार करने के लिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना पड़ेगा. a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस d, a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d. सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं. a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d. ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव. तो इसको एसोसिएटिव लॉ से कैसा लिख सकते हैं. a क्रॉस पहले है, a क्रॉस पहले है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a क्रॉस b माइनस c. फिर से करके देखिए वही आता है क्या, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c. सो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c कैन बी रिटन एज a क्रॉस b माइनस c. अब यहाँ पे ये क्रॉस d बाद में क्रॉस d है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ c माइनस b क्रॉस d. d को पहले कॉमन मत लीजिए, d बाद में है तो बाद में आएगा. यहाँ पे a पहला है तो a पहला ही आएगा. सो इफ़ यू राइट d फर्स्ट इट विल बी रॉन्ग. सो नाउ यहाँ पे b माइनस c आ सकता है. सो इट इज़ a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस b क्रॉस c क्रॉस d. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू a क्रॉस b माइनस c प्लस b माइनस c क्रॉस d इक्वल टू 0. और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ a क्रॉस b माइनस c, यहाँ से फिर से माइनस कॉमन लूँगा तो a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, तो d पहले आ जाएगा. a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस b, तो d पहले आ जाएगा, तो d क्रॉस
बी माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। अब फिर से क्रॉस बी माइनस सी, उसको मैं राइट साइड से ही कॉमन लूँगा, तो ए माइनस डी बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा मुझे बी माइनस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो किसी भी दो वेक्टर का ये क्रॉस है, ए माइनस डी कॉमन लिया, ए माइनस डी, तो ये बनेगा बी क्रॉस बी माइनस सी कॉमन लिया है। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ 0 वेक्टर। किसी भी वेक्टर के दो वेक्टर अगर पैरेलल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में का एंगल कितना होता है, 0 होता है या 180 होता है। सो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी, सो दैट विल गिव 0, सो इट इज़ 0 वेक्टर। सो it means a minus d vector is parallel to which vector b minus c. So a minus d is parallel to b minus c, and this is in the first option. So option A is correct to this question number 9. See the next question number 10, and this is the last question of this lecture of vector product, that is the cross product. So see the last question, but this question is very best question, and this question is also from your textbook. यहाँ पे दिया है a वेक्टर i प्लस j प्लस के, c वेक्टर दिया है j माइनस के, और वेक्टर b satisfying a क्रॉस b equal to c and a dot b equal to 3. So here students, question is very good. क्या क्या दिया है हमें, a वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर दिया है मुझे जे माइनस के, और ए डॉट बी दिया है 3, एंड अगेन आई हैव गिवन ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। तो मुझे फाइंड आउट करने का है वेक्टर बी, ऐसा कौन सा बी वेक्टर होगा जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की, वेयर ए एंड सी वेक्टर्स आर गिवन. सो आई हैव टू फाइंड दिस वेक्टर बी. सो लेट वेक्टर बी इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कंसिडर करते हैं. तो बाय दिस कंडीशन ए डॉट बी इक्वल टू 3, तो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. सो x इंटू 1 x प्लस y इंटू 1 y प्लस z इंटू 1 z इक्वल टू 3. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अगेन आई हैव गिवन दिस इक्वेशन a क्रॉस b इक्वल टू c. सो c वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर. सो a क्रॉस b वेक्टर के लिए मेरा पहला रो है i j के. ए वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलेंगे 1 1 1 एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट्स ए बी वेक्टर है एक्स वाई जेड. सो व्हाट दिस वेक्टर विल गिव? सो इट विल बी जेड माइनस वाई आई वेक्टर. ये जेड माइनस एक्स होगा तो माइनस से एक्स माइनस जेड बन जाएगा, एक्स माइनस जेड जे वेक्टर. और ये वाई माइनस x k vector. So dissolving the determinant you will get this vector, but this is equal to c vector. तो मेरा c वेक्टर क्या है? j माइनस की. ओके, तो यहाँ पे i की टर्म में इसे और इसे कंपेयर करके मुझे z माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब y इक्वल टू z है. अब x माइनस जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड जे इक्वल टू जे है, तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है x माइनस जेड इक्वल टू 1 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1. ओके, तो y इक्वल टू जेड है. तो अब हमें एक्स वाई जेड किस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो यहाँ से देखिए मैं x को लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड. तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ रखूँगा. फ्रॉम दिस इक्वेशन में x को लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड, x को लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड, y को क्या लिख सकता हूँ?
y को लिख सकता हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू -1। सो y को मैं z लिख सकता हूँ। ओके, सो सी दिस x इज इक्वल टू 1 प्लस जेड, वाई इक्वल टू मैं z लिख सकता हूँ और ए जेड एज इट इज। सी अगेन दिस x इज 1 प्लस जेड, दिस y इज z, दिस z एज इट इज़। तो यहाँ से मेरा z मिल जाएगा, तो 3z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू मुझे मिलेगा 2/3। अगर z मेरा 2/3 है तो मेरा y भी कितना होगा 2/3। सो बोथ आर इक्वल टू 2/3। तो x कितना होगा, तो x भी मिल जाएगा यहाँ से, तो x होगा 1 प्लस 2/3। सो ये x होगा 5/3। ओके, तो अब इस वेक्टर में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरा x कितना आया है 5/3 y और z सेम है 2/3। सो इट इज़ 2/3j प्लस 2/3k। तो ऐसा वेक्टर किस ऑप्शन में हमें मिलता है, देखिए, चेक द ऑप्शंस। सो आई थिंक इट इज़ ऑप्शन बी, राइट। 1/3 कॉमन 5i प्लस 2j प्लस 2k। So this is the option B. So this was the question number 10, and question number 9, 10 both questions are very good. So students, these are the problems on vector product, that is the cross product, and all the problems are very important for MSTCT. In the next lecture we will again solve next problem from problem number 11 to 20, and all the problems will be very important. So okay students, bye.